V in unit 1. ये क्यों नहीं चल रहा है? एक मिनट रुकना है, इसको दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ये चल भी नहीं रहा है। यस। हेलो। Yes, sir. तो लास्ट क्लास में हमने डेफिनेशंस वगैरह इसकी देखी थी। अभी हम आगे करेंगे। वी डिफाइंड एसएचएम एज एन ऑसिलेटरी मोशन। एसएचएम को हमने कैसे देखा था? एक ऑसिलेटरी मोशन की तरह उसको डिफाइन किया था। ऑफ एन ऑब्जेक्ट in which the restoring force is proportional to the magnitude of displacement and is always direct towards or opposite to the displacement of the equilibrium position. We also note that net force at the mean position is zero. We also solved the differential equation for SHM and obtained its solution. The displacement of an object executing SHM is given by expression x of t is x is equals to a sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ए क्या है? amplitude, एम्पलीट्यूड। और डेल्टा क्या है? phase difference, फेज डिफरेंस या फेज कांस्टेंट। ये हमारे इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से आपको पता चलेगा फेज क्या होता है, फिर उसके बाद फेज कांस्टेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, चेंज विद टाइम, और फिर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। फेज ऑफ एन ऑसिलेटर एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। The word phase is synonymous to what we call state. For example, in thermodynamics, phase of a substance refers to the solid, liquid, vapor, or plasma state of a substance. You may recall from Unit 1 that equation of motion. The equation of motion executing SHM is second order differential equation. Second order differential equation means SAT x double dot plus k by m x equal to 0. ये तीनों differential equation SHM की। To obtain the expression To obtain the expression for displacement of oscillator, we we integrate differential equation twice and obtain the value of integration constant by making use of initial boundary condition, initial and final boundary condition। यहाँ पे final आएगा।
इनिशियल एंड फाइनल बाउंड्री कंडीशन। फिर हम इसको इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ से हमने निकाला x इजिकल्स टू a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। नेक्स्ट, इन द अबव एक्सप्रेशन the argument of sine function, the time varying quantity omega t plus delta changes, the position also changes. In other words, the quantity actually specify the state of system at that instant. This quantity is called the phase of system. X is equals to a sin omega t plus delta. ये वाली चीज अगर चेंज होगी, अगर आपको x को चेंज करना है, तो आपको t को चेंज करना पड़ेगा, और अगर t चेंज होगा तो ये पूरी क्वांटिटी चेंज होगी। ओके, तो ये क्या कहलाएगी? फेज। If the phase phi is equals to omega t plus delta is zero at certain instant, then x equal to zero. Then velocity is a omega. Means that the oscillating body. This means that the oscillating body is crossing the mean position and is going towards the positive direction. If the phase is pi by 2, then we get x equal to a and velocity is equal to 0. So that oscillating body is at the positive extreme position. If the following figure of at different phases, phi is equals to 0, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। phi is equals, आपको ये इक्वेशन देखनी है, x is equals to a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा is equals to a sin phi। यहाँ से b कितना आ जाएगा? b है a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस डेल्टा, तो b is equals to a ओमेगा 1 माइनस साइन पाई को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, तो कॉस स्क्वायर फाई कितना हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, एक मिनट रुकना, गायब हो गया। तो हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू ऑफ फाई रख के उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फाई इक्वल टू 0 रखोगे आप, फाई इक्वल्स टू 0 रख रहे हो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? साइन 0 0, तो मेन पोजीशन पे आ गया। और वेलोसिटी में रख रहे हो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू ए ओमेगा आ रही है। मीन्स वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रही है तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? हेलो, पॉजिटिव वेलोसिटी डायरेक्शन। प्लस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन। अब पाई बाई 2 रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे देगा एक्स, लेकिन वेलोसिटी कितना देगा? v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 कितना होगा? 0। तो वेलोसिटी हमारी हो गई 0। वेलोसिटी 0 मीन्स एक्सट्रीम पोजिशन। ऐसे ही अब पाई बाई 2 पाई रखेंगे, पाई के लिए हम रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, फिर से मीन पोजिशन। लेकिन जो वेलोसिटी है वो निगेटिव आएगी। इससे देखो आप, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी कितना आ जाएगा? कॉस पाई -1, तो माइनस ए ओमेगा मीन्स निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इससे यहाँ पे सब्सटीट्यूट मतलब ऐसे v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस रहने दो, वरना फिर कंफ्यूजन होगा। v इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस वो कितना है? 5। ओके, बस इसके बाद आप ऐसे ही रख के चेक करते रहेंगे। We see that as the time increases, the phase increases. An increase of 2 pi brings an increase of 2 pi brings the body to the same phase. Thus, a phase constant is equivalent to omega t plus delta plus 2 pi. Similarly, a phase change of 4 pi, 6 pi, 8 pi equivalent to no phase change. अगर आप उसमें किसी में भी 2 pi ऐड करते हो तो आपकी जो फेज है वो वापस रिपीट हो जा रहा है। तो ये पीरियोडिक कितने का होगा?
पीरियोडिक मोशन विद टाइम पीरियड कितना हो गया इसका? सब 2 पाई। 2 पाई हो गया। ओके, phase constant. The constant of integration delta appearing in the expression for displacement xt equal to a sin omega t plus delta. ये delta क्या है? Phase constant. It's called phase constant or phase angle. The value of delta depends on initial condition. The displacement and velocity of oscillating body at t equal to 0. सर ये फेस कांस्टेंट कहाँ से आ रहा है? इंटीग्रेशन क्या है ना, लिखा हुआ था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स डबल डॉट इज इक्वल्स टू के बाई एम एक्स। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो एक्स डॉट इक्वल टू के एक्स बाई एम टी प्लस डेल्टा, ये आ गया ना। ये डेल्टा अगर आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहे हो सिर्फ विदाउट कैलकुलेटिंग सी एफ एंड पी आई, अगर आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप ऐसे होगा, एक बार और इंटीग्रेट करोगे एक्स डबल सॉरी एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स टी स्क्वायर। वैसे ऐसे होगा नहीं क्योंकि इसको इधर एक्स डबल डॉट है और इधर इसका आर्ग्यूमेंट है, तो आपको वैसे करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, सी एफ पी आई लेके ही करना पड़ेगा। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये यहाँ से कितना आएगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी आएगा। ओके, फिर आप यहाँ से इनिशियल यस कंडीशन सर। लगाओगे एट t is equals to 0, x equal to 0, b is equals to a ओमेगा। ये दोनों कंडीशन लगाओ, यहाँ से a और b निकलेगा। फिर आप इसको चेंज कर सकते हो a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा में। ओके, in order to describe SHM quantitatively at particular instant t is equals to 0 and measurement of time should be given from this instant. This instant can be chosen according to the convenience. Suppose we choose t equal to 0 at an instant when the oscillating body is passing through its mean position. Thus, at t equal to 0, this means the phase constant is 0. The equation for displacement can be written as x t equal to a sin omega t. If we choose t is equals to 0 at an instant when the oscillating object is at positive extreme position, the phase angle is pi by 2 at this instant. Thus, phase omega t plus delta is pi by 2. Then delta is equals to pi by 2. This equation, the equation for displacement is therefore given by x equal to a sin omega t plus pi by 2. अगर आपने आपका सिंपल पेंडुलम है, आपने मेन पोजीशन जो मानी वो ये मानी जो एक्सट्रीम पोजीशन है। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने क्या देखा था अभी ऊपर फेजर डायग्राम में, x इक्वल टू पाई बाई 2 ये था। x इक्वल टू पाई बाई 2 पे आपका x वो कितना था, पाई इक्वल टू पाई बाई 2 पे x कितना था, a, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे था, और फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2। तो ओमेगा टी प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। टाइम आपने 0 कंसीडर किया है क्योंकि वो आपका रेफरेंस पॉइंट, तो डेल्टा कितना आ गया, पाई बाई 2। ओके, तो हमारी पोजीशन आ रही ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 कितना होता है, कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 या कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका शो दैट साइन एंड कोसाइन फंक्शन describing the displacement of oscillating body executing SHM are equivalent। आपको ये शो करके दिखाना है कि साइन और कोसाइन फंक्शन जो है वो इक्विवेलेंट है। जनरल एक्सप्रेशन कितना है, ए साइन ओमेगा टी, जैसे अभी ऊपर हमने डिफाइन किया कि एक बार मेन पोजीशन को हमने क्या मान लिया, एट तो यहाँ पे एक्स और डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। सेकंड हमने क्या मान ली, एट टी इज इक्वल्स टू 0
डेल्टा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। हमने ये दो कंडीशन मान के देखा कि हमारे जो दोनों आ रहा है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे अभी ऊपर मैंने कराया वही करना है इसमें। A particle starts at t equal to 0 from mean position with velocity ये दे रखा है in positive direction सर ये if the ऊपर time वाले period। क्वेश्चन सर ऊपर वाले हाँ क्वेश्चन में हम दो अलग अलग रेफरेंस पॉइंट लेके तब कर रहे हैं ना सॉल्व। हाँ पहले जैसे मीन अभी को ऊपर एक्सप्लेन। जीरो मान रहे हैं, उसके हाँ बाद एक्सट्रीम को मान। हाँ जैसे अभी ऊपर समझाया था ना वही करना है, दो अलग अलग लेना है, मतलब एक ही एसएचएम के आपके दो, आपको दो रेफरेंस पॉइंट लेना है और वहां से आपको करना है। At t equal to 0 from mean position with velocity v ये दे रखा है in the positive direction if time period is, then write the expression for displacement of particle. What minimum time does particle take from mean। फिगर का है, पी पॉइंट का है, पॉइंट पी, पी तो दिया ही नहीं। चलो उसको छोड़ो, आप पहले इक्वेशन लिखनी है आपको, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है? ओमेगा और एम्पलीट्यूड। एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब आपको ओमेगा चाहिए, टी तो आपका कांस्टेंट है, डेल्टा और ए चाहिए। ठीक है, तो टी कैसे निकाल ओ ओमेगा कैसे निकालेंगे? 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू पाई आ गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे हमें क्या चाहिए? एक्स इक्वल ये वेलोसिटी यहाँ से निकाला, वेलोसिटी एक कॉस ओमेगा टी। आपको वेलोसिटी गिवन है क्वेश्चन में, v इज इक्वल्स टू 3 पाई मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा, 3 पाई मीटर, 3 पाई इज इक्वल्स टू ए, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आई? पाई, पाई से पाई कट गया, ए आ गया 3। ओके सर हाँ, स्लाइड नीचे करे थोड़ा सा। तो यहाँ सर से v हमारा इज एक्स इक्वल टू ए ओमेगा वो मेन पोजीशन पे ले रहे हैं ना। मेन पोजीशन पे दिया है ना, एट टी इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना, at t is equals to 0 from the mean position the velocity is 3 pi meter per second। यस सर। ठीक है, बस आपके पास a आ गया, ओमेगा आ गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया? a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, ये आप लिख लोगे। ओके, ये आ गया 3 sin pi t। The particle is at mean position t equal to 0, let the particle assume the reaches p midway between। अच्छा, p पॉइंट कौन सा है? बीच में कोई एक पॉइंट है मीन पोजीशन और एक्सट्रीम राइट पोजीशन के। अगर आपके पास ये एक्सट्रीम राइट पोजीशन है किसी बॉब की, ये आपका बॉब है, ये इसकी एक्सट्रीम राइट पोजीशन है, तो ये पॉइंट एक पी है और ये क्या है? मीन पोजीशन, मीन पोजीशन ये पॉइंट पी और ये एक्सट्रीम राइट। ओके, एक्सट्रीम राइट, तो आपको क्या निकालना है? एक्स इक्वल टू मिड में है, एक्स इक्वल टू कितना है? ए बाय 2, क्योंकि बीच में आ रहा है ना तो उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? मिनिमम वो हाफ हो जाएगा। तो सर यहाँ से हम क्वेश्चन टाइम तो निकाल, दिया नहीं है, जस्ट मिड हाँ का। क्या क्वेश्चन दिया नहीं है। क्वेश्चन में बोला है? अच्छा हाँ, आगे लिखा हुआ है एट पॉइंट पी विच लाइज मिडवे बिटवीन द मीन पोजीशन एंड द एक्सट्रीम राइट पोजीशन। बीच में लाई कर रहा है। क्या क्वेश्चन में क्या दिया है? एक्स इक्वल टू ए साइन, हमारा कितना है? 3 पाई, ये आया ना हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी आई? 3 और ओमेगा आया पाई, ए साइन पाई ये आया ना हमारा, पाई टी, साइन पाई टी। अब आपको क्या कहा है? पी पॉइंट जो है मिनिमम टाइम बताना है जब आपका पार्टिकल जो है वो पॉइंट पी पे पहुंच जाएगा। पॉइंट पी कौन सा है? मिडवे बिटवीन द एक्सट्रीम राइट एंड द मीन पोजीशन। अगर आपका ये एक्स इक्वल टू 0 है और सबसे ज्यादा दूर कितना है? ए, तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा? ए बाय 2। तो यहाँ पे 3/2 इक्वल टू 3 साइन पाई टी, 3 से 3 कट गया, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई टी।
साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा 5/6 इज इक्वल्स टू 5t। 5 से 5 कट गया, t इक्वल टू 1/6 सेकेंड। ओके ठीक है। सर हम लोग डिस्टेंस का हाफ ले रहे हैं ना, एम्पलीट्यूड का हाफ नहीं ले रहे हैं। किसका? मतलब वो एक्स बाय, मतलब वहाँ पे 3/2 पुट किए हैं ना एक्स के जगह में, हाँ मतलब वो डिस्टेंस का हाफ ले रहे हैं ना, मतलब वहाँ अरे पे। डिस्टेंस और एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना एम्पलीट्यूड। हम्म। तो उस, हाँ तो और आपको और कोई डिस्टेंस आप मेजर करते हो क्या? सर तो वो एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड तो वहां 3 तक, ही रहेगा। एम्पलीट्यूड तो 3 रहेगा। ये तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो तो यहाँ पे आ जाता है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। और ये जो x होता है ये होता है ए टी, इसे आप ए टी लिख सकते हो। एम्पलीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ओके यस सर। जैसे ये है ना, x ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स नॉट और साइन ओमेगा टी। एक्स नॉट क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो ये a आ गया। लेकिन एक्स टी क्या है कि डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है। तो इसको हम ए टी लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट में क्या है कि मैक्सिमम टाइम जब एक्सट्रीम राइट पोजीशन में जाना है, एक्सट्रीम राइट पोजीशन क्या होगी ए। तो इसको कैसे लिखोगे, ए इज इक्वल्स टू ए साइन पाई टी। ए से ए कट गया, साइन इनवर्स 1 कितना हो गया 5/2। पाई टी, यहाँ से टी कितना आ गया 1/2 सेकेंड। ओके यस सर। टी इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0.5 सेकेंड और 1/6 सेकेंड। हमारे पास 4 सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, ये आप देखिएगा। एस एच एम एज ए सर प्रोजेक्शन ऑफ, अगर सर हाँ सर अगर लेफ्ट एक्सट्रीम में पूछता फिर तो भी सेम होता। तो सर उसको डिस्टेंस तो और आधा कवर करना पड़ता है ना, तो टाइम तो बढ़ता है, टाइम डबल हो जाता हाँ, ना। नहीं तो उसमें जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया था ना, इसमें दिया हुआ था कि इधर को चल रहा है, क्या कहते हैं, राइट में जा रहा है। अगर आपके जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, अगर कह रहे था लेफ्ट साइड में आपको निकालना है एक्सट्रीम लेफ्ट, तो यहाँ से यहाँ तक गया ए, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आया ए, फिर यहाँ से मिडवे गया, तो यहाँ से a/2। तो टोटल कितना हुआ a/2 कितना हुआ 3a/2 इज इक्वल्स टू ए साइन पाई टी। ओके साइन इनवर्स 3/2, फिर इसको हम सॉल्व करते, लेकिन साइन इनवर्स 3/2 तो पॉसिबल नहीं है। सर हम डायरेक्ट मिड से लेफ्ट लेके जाएंगे ना इसमें, वैसे। क्यों? सर 3/2 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। वही तो, लेकिन हमें तो पूरा लेके आना पड़ेगा ना। अगर हमारा राइट में जा रहा है तो पहले राइट में जाएगा, फिर मेन पोजीशन पे आएगा, फिर ही तो लेफ्ट में जाएगा। नहीं, अगर नहीं लिखा हुआ है कि राइट से होके जा रहा है तो फिर मतलब कैसे भी लेके जा सकते हैं ना, डायरेक्ट मिड से लेफ्ट लेके जा सकते हैं ना। बट अगर ऐसा होगा केवल लेफ्ट में लेके जाना है, केवल लेफ्ट में लिखा हुआ है, तो 1/2 लिखेंगे और उससे कर लेंगे सॉल्व। वैसे एम्पलीट्यूड लेंगे ना यहाँ पे तो 1/2 ही लेंगे अगर लेफ्ट में जा रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही होगा ना। डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से गया और वापस आया, ये तो जीरो हो गया। इधर अगर इधर ए गया और फिर वापस आया -a, तो ये हो गया टोटल जीरो। फिर इधर गया तो a/2 ही गया ना, तो यहाँ पे a/2 ही लेंगे 1/2। सर मतलब अगर एक्सट्रीम एंड पे भी जाएगा तो सिर्फ ए ही हो जाएगा ना, हाँ और फिर सेम यही ही टाइम होगा, नहीं लगेगा। हाँ सेम ही होगा आंसर। सर लेकिन रियलिटी में तो सर टाइम तो सर आगे और पीछे दोनों का मिलेगा ना, टाइम तो स्केलर ही है, हम्म तो सर फिर टाइम तो आपको डबल ही। आप पहले ऐसे करके, पहले उसे राइट में लेके जाओ, राइट का टाइम अलग निकालो, फिर उसे लेफ्ट में लेके जाओ, लेफ्ट का टाइम अलग निकालो, दोनों को ऐड कर दो। क्योंकि टाइम तो स्केल आ रहा है ना, टाइम तो डायरेक्टली ऐड हो सकता है। जितना राइट का टाइम हुआ जितना लेफ्ट का टाइम हुआ दोनों निकालो और दोनों को ऐड कर दो। ठीक है। यस सर। तो डायरेक्ट एम्पलीट्यूड फाइंड करके नहीं कर सकते हैं?
हेलो, यस यस सर। सर। ठीक है, समझ में आ गया। पहले राइट का निकालो, फिर लेफ्ट का निकालो और दोनों को ऐड कर दो। नेक्स्ट है सर एसएचएम। डायरेक्ट हाँ, सर डायरेक्ट टोटल एम्पलीट्यूड नहीं फाइंड कर सकते कि पार्टिकल कितना जा रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग टाइम फाइंड कर सकते हैं। नहीं, एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है ना। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट तो मिनिमम डिस्टेंस कवर होता है। अगर आप ऐसे करके लेके जा रहे हो, ये है आपका मीन पोजीशन। यहाँ से आप इधर गए एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से इधर को आए मीन पोजीशन पे, फिर इधर गए ए ए a/2। कितना डिस्टेंस कवर हुआ आपका? टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस 3/2, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सर ये a/2 हुआ बाई ना। टू बाई नहीं टू। होगा ना, ये तो एक्सट्रीम जा रहा तो ए ही होगा ना। क्यों? ए जाने का, ए वापस आने का 2a, और ए इधर जाने का 3a नहीं हुआ? 3a/2 डिस्टेंस कह रहा हूँ सर मैं, डिस्टेंस। पूरा जा रहा है। ये सर डिस्टेंस लेके तो टाइम फाइंड कर सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट तो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन आपके इक्वेशन में तो डिस्प्लेसमेंट है ना। आपकी ये जो इक्वेशन है a sin ओमेगा t, यस ये तो डिस्प्लेसमेंट है। यस ठीक है, यस सर। नेक्स्ट। कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r as shown in figure 2। ये आपके फिगर 2 का है, 30 नहीं तो। we can write the coordinates of p। p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? r cos थीटा, r sin थीटा, where r is the radius of circle and theta is the angle between the sides। अब ये ऐसे y और x में कैसे चेंज हो रहा है? y और थीटा में, ये थीटा है, ये y है। वाई एक्सिस पे घुमाना शुरू किया, r sin थीटा। जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, ये थीटा इज इक्वल्स टू 0 है। 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है। बढ़ते 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 ये एंगल हो गया π/2। π/2 पे ये पहुंच गया यहाँ r, ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया r sin थीटा। फिर इसके बाद यहाँ से थीटा, थीटा तो बढ़ रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू वो कम होनी शुरू हो गई, माइनस में जानी शुरू हो गई, तो यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो गया। फिर पाई के जाने के बाद फिर और ज्यादा, फिर माइनस में चला गया वैल्यू, यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे आ गया हमारा पाई, ये आ गया हमारा पाई। फिर यहाँ से फिर माइनस से जाके फिर माइनस में इंक्रीज होने लगी वैल्यू, फिर यहाँ से 2 पाई। तो हम अगर कोई पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा है या एक सर्कल की बाउंड्री पे घूम रहा है, तो उसको हम साइनोसॉइडल वेव से शो कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक्स के थ्रू प्लॉट करेंगे, एक्स और थीटा, तो ये हमारा कौन सा ग्राफ देगा? कॉस का ग्राफ देगा। ओके, you may note that as the particle p moves along the circular path, its y-coordinate changes because theta changes from 0 to 2 pi. Thus, we see that the y-coordinate of particle executes SHM. Similarly, you should convince yourself that x-coordinate of particle will also execute SHM. However, the phase of two harmonics differ by π/2। दोनों π/2 से चेंज हो रहे हैं, मतलब दोनों के फेज डिफरेंस कितना है? π/2। सर यहाँ पे एसएचएम हो रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पे हाँ, तो पीरियोडिक लग रहा है ना। तो यहाँ पे क्या? जो पार्टिकल, सर यहाँ पे जो पार्टिकल है पॉइंट पी पे, वो पीरियोडिक मोशन कर रहा है कि एसएचएम कर रहा है? अरे, SHM तो पीरियोडिक मोशन होता है। सर इसमें एसएचएम मतलब एक पॉइंट के अबाउट वो आगे पीछे करेगा ना, तो इसमें तो ये पीरियोडिक हो रहा है ना। अरे, ये आप इसको उसमें दिखा रहे हो, पोलर कोऑर्डिनेट्स में दिखा रहे हो। अगर आप इसको फेजर में दिखाओगे, तो एक ये जो लाइन है, ये जो थीटा है, इसके अबाउट हो रहा है ना। इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में थीटा के अबाउट आपका वो हो रहा है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अगर ये ऐसे घूम रहा है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया? अगर ये जेड एक्सिस मान लिया मैंने, ये जेड एक्सिस है, तो ये आपका जो पार्टिकल है वो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इट इज पीरियोडिक फॉर द जेड एक्सिस। मतलब अगर आप किसी पॉइंट के अबाउट पीरियोडिक मान रहे हो, तो जेड एक्सिस के अबाउट है। ओके, यस सर।
द प्रोजेक्शन, आप इसको विजुअलाइज करोगे ना, अपने सोचोगे मन में, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन on a diameter of circle in simple harmonic motion. This representation is called rotating vector representation or a phasor model. ये उस दिन हम लोगों ने डिस्कस जो किया था, फेजर मॉडल। ओके, सर ये पाई बाय वेलोसिटी एंड टू का एक्सेलरेशन फेज डिफरेंस कैसे आ रहा है, एक बार बता दो, एक्स और वाई कैसे कोऑर्डिनेट। आएगा मतलब? अरे एक्स कितना है, आर साइन थीटा, वाई कितना है, आर साइन थीटा, और एक्स कितना है, आर कॉस थीटा। तो आर साइन थीटा इक्वल टू आर कॉस थीटा रखो आप, आर से आर तो कट गया, साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस पाई बाई टू, नहीं हो गया? हुआ नहीं हुआ? दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, पाई बाई टू। अगर अगर ग्राफ से देखो आप, ये तो क्या पूछ रहे हो आप मेरे से, ये साइन एक्स का ग्राफ है और ये कॉस एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स का ग्राफ कहाँ से शुरू होता है हाँ सर आ गया सिद्धांत? सर। ये जीरो से शुरू होता है और ये पाई बाई टू से शुरू होता है, तो दोनों में पाई पाई बाई टू का डिफरेंस क्या है? यस सर। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी, we obtain we can obtain expression for velocity and acceleration using the differential calculus. X is equals to a sin omega t, dx by dt is equals to vt a cos omega t plus delta। फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट, from the above expression you may wrote that the amplitude of velocity or maximum velocity is given by v max is equals to a omega। In unit 1 we obtained an expression for velocity in terms of displacement and another other parameters of SHM. V is equals to a omega, V is equals to omega x square minus a square minus x square। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोनों। ओके, to obtain expression for acceleration of particle in SHM we differentiate the expression of displacement twice। दो बार इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। आगे पास कितना है, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। यहाँ से आप x डॉट निकाल लोगे, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब इसका x डबल डॉट निकालोगे, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। a साइन ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, x, तो x डबल डॉट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। x डबल डॉट इज एक्सेलरेशन। और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई इसकी, ओमेगा स्क्वायर ए, और मिनिमम वैल्यू 0। फोर्स इज कैलकुलेट, वी कैन डिटरमाइन द रेस्टोरिंग फोर्स बाय F इज इक्वल्स टू एम एक्स डबल डॉट, एम एक्स डबल डॉट या एम ए माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। We also know that F is equals to minus kx in case of spring mass system. Compare it with equation 2.5. Equation 2.5 here we get the similar familiar expression for the angular velocity. Omega is equals to k by root a by m. A horizontal platform executes SHM in vertical line with time period pi s and amplitude a. A book of mass time is placed on the platform, oscillates with it. Calculate the greatest and least value of force. आपको x कितना दे रखा, x is equals to a sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा। आप अभी पहले तो आप मीन पोजीशन बताओगे, एट टी इज इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो आपको क्या चाहिए, ओमेगा। ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। टाइम कितना दे रखा है, पाई सेकेंड, तो ये आ गया 2 पाई अपॉन पाई, पाई से पाई कट गया, तो x इज इक्वल्स टू आ गया ए साइन 2 टी। तो आपको चाहिए ए की वैल्यू। एम्पलीट्यूड कितना गिवन है, 0.5 एम्पलीट्यूड भी गिवन है, x इज इक्वल टू 0.5 साइन 2t। आपको क्या निकालना है, फोर्स।
फोर्स के लिए आपको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज एक्स डबल डॉट, इसको डबल डॉट करोगे ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स तो यही है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 4 इंटू मास 2 इंटू एक्स 0.5 साइन 2 टी। बस इसका आप रख लोगे, आंसर आ जाएगा। फिर टी की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम रख लोगे तो वहां से आपको वो जाएगा क्या फोर्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब है नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज इन एसएचएम। While discussing the motion of simple oscillatory system, we discover energy of oscillation alternates between the potential and kinetic energy. The potential energy being minimum at mean position and maximum at extremities. On the other hand, kinetic energy is maximum at mean position and minimum at extremities, while the sum of potential is constant. आपके पास ये यहाँ पे जगह खाली है। ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक पेंडुलम मैंने शो किया, ठीक है। ये आपकी एक्सट्रीम राइट पोजीशन है। यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू a। यहाँ से आपने छोड़ा, ये यहाँ से आया ऑसिलेट होता हुआ, यहाँ पे आया। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्स हाईएस्ट होगी या लोएस्ट होगी? मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। अब यहाँ से फिर आगे बढ़ता हो गया, ये पर मिनिमम या फिर जीरो ही होगी ना? मिनिमम होगी ना। पोटेंशियल एनर्जी उस एक क्या कहते हैं, जो बॉब है उसके मास की वजह से तो भी एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना। तो जीरो कहने से अच्छा है कि मिनिमम कह देते हैं। मिनिमम तो जीरो ही होगा, वो तो पता है, लेकिन मिनिमम कहना एक ठीक रहेगा, क्योंकि आप इतने मतलब अभी इतने छोटे छोटे नहीं है कि अगर मिनिमम है तो आप जीरो कर दोगे उसको, ठीक है सीधे। ओके, सर लास्ट पॉइंट क्या बोला आपने? मतलब जो बॉब की एनर्जी है ना, जो बॉब के अंदर मास कंटेंट होगा उसकी वजह से भी तो एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है। ओके सर। हाँ, पहले क्या है पोटेंशियल एनर्जी। वी शैल डिराइव द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी of simple spring mass system that we studied in Unit 1. The value of elastic potential energy depends entirely on how much the spring is stretched or compressed. That is the displacement of from the equilibrium position. Further, the elastic potential energy du gained by a system is equal to the work done against the force in moving the distance dx. तो हमारा du कितना आ गया? dw कितना होता है? माइनस एफ डॉट डी एक्स बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि जितना वर्क और एनर्जी आपस में इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से हमने इसको इक्विवेलेंट है तो एनर्जी के इक्वल लिख दिया, माइनस एफ डॉट डी एक्स। एफ हमने ऊपर कैलकुलेट किया, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ से डी यू। यू कितना आ गया इंटीग्रेट हो गया? यू को हमने इंटीग्रेट किया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और हाफ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। के एक्स की जगह हमने क्या रख दिया? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रख दी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। Let us now calculate the average potential energy of spring mass system over one complete cycle. Over one complete cycle means एक complete time period में, एक complete time period में इसको इंटीग्रेट किया तो ये कितना आ गया? 1/4 के ए स्क्वायर। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इज एंटायरली एसोसिएटेड विद द मूविंग ऑब्जेक्ट। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दैट इज ऑन द वेलोसिटी। हेंस k इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। v की जगह एम वी कितना होगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, वैल्यू रख दी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी की, फिर हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी स्क्वायर आ गया। Therefore, average kinetic energy which can be calculated over a time period, one time period के ऊपर हमने वैल्यू निकाली तो ये आ गया 1/4 के ए पूरा स्क्वायर। के लेट किया है। हाँ, k इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट के बाय एम होता है ना।
ओके सर। Okay, we find that average potential energy is equals to average kinetic energy, total mechanical energy. Using equation 2.7, 2.9, we can determine the total mechanical energy by summing the potential and kinetic energy. ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ के एक्स स्क्वायर और ये आ गई हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। इसको ऐड कर दिया दोनों को, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन बाई हाफ आ गया, तो एनर्जी कितनी आ गई 1/2 के स्क्वायर। Total mechanical energy of oscillator string mass system is indeed a constant and is independent of time or position। फिर इसका ये ग्राफ बनाया, मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रहा है हाफ के ए स्क्वायर, ये एनर्जी जो है ये मैक्सिमम। ओके, हमारी पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज हो रही है कॉस के डायरेक्शन में, ये वाला। और फिर काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो रही है साइन की। काइनेटिक एनर्जी का वो क्या आया था एक्सप्रेशन टाइम का, कॉस आ रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी में कॉस आ रहा है तो कॉस के तरीके से चेंज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी के में साइन आ रहा है तो साइन के नेचर में चेंज होगी। ओके, we show that the variation of potential energy kinetic energy of linear oscillator as function of displacement. Now at x equal to 0, that is mean position, the energy is all kinetic, and while at extremities x equal to plus minus it's all potential। अब x हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा और फाइव, और k इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब आप जीरो रखोगे, x इक्वल टू जीरो रखो। एक मिनट रुकना, क्या आया था इसके ऊपर, ये आया था हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी और कहाँ पे मिनिमम होगी। x इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स जीरो तो यहाँ और दूसरे के लिए अपोजिट हो जाएगा। क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी कितना होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। एक्स इक्वल टू जीरो रखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू देगा हाफ एम ओमेगा ए, और अगर आप वो रखोगे एक्स इक्वल टू ए रखोगे, ए या माइनस ए यहाँ पे रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम देगा। ओके, सर यहाँ पर लीनियर ऑसिलेटर लिखा है, तो सर दूसरे केस और कैसे होते हैं और उनमें क्या चेंज आता है? लीनियर ऑसिलेटर कहाँ लिखा है लीनियर ऑसिलेटर, अच्छा ये एफ इक्वल टू माइनस के एक्स है ना, एक्स की पावर वन है तो ये लीनियर ऑसिलेटर हो गया। अगर यहाँ पे क्यूबिक ऑसिलेटर होता, क्यूबिक में कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब हो जाता। फोर्स के आपको वो देखना है कि कैसे चेंज हो रहा है। ओके, पावर डिस्प्लेसमेंट की पावर कैसे दे रखी है, और इसका सर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होती है ना। तो एक्स की पावर कितनी है यहाँ पे, एक्स और टी में क्या रिलेशन है, पावर दोनों की वन है तो लीनियर ऑसिलेटर हो गया। सर ये क्यूबिक ऑसिलेटर में मोशन कैसा होता है? पता नहीं मुझे देख लो ना क्यूबिक इक्वेशन की लेट करो आप, लेट एक्स कितना आना चाहिए टी क्यूब आना चाहिए क्यूबिक ऑसिलेटर के लिए, कि अगर टाइम चेंज हो रहा है तो एक्स कैसे चेंज होगा, या फिर एक्स क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन होगी क्यूबिक ऑसिलेटर की, जब चेंज कैसे होगा। अगर y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब होता है, इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसे करके ऐसे बनता है ना एक्स क्यूब का ग्राफ, तो बस ऐसे ही होगा। लेकिन ये बाउंडेड मोशन नहीं होगा, क्योंकि इधर अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो इधर ही चलता चला जाएगा, अगर इधर जा रहा है तो इधर चलता चला जाएगा। बाउंडेड मोशन के लिए बताई थी ना कंडीशन उसमें आपको ग्रेविटेशन में, एनर्जी पीरियोडिक लेस मोशन तो देन होना, जीरो।
हाँ नहीं नहीं, सब बाउंडेड के लिए। अभी अभी हमने ऊपर एसएचएम के लिए क्या देखा, या पीरियोडिक मोशन के लिए क्या देखा, कि एक पीरियोडिक मोशन एक टाइम के, एक पॉइंट या एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करना चाहिए। लेकिन क्या ये रिपीट करेगा अगर आपके पास ऐसा कोई पोटेंशियल है तो? अगर आपके पास मान लो ये पोटेंशियल है, ये आपके पास पोटेंशियल है, तो क्या ये रिपीट करेगा? नहीं सर। नो सर। नहीं करेगा। तो क्या ये एग्जीक्यूट करेगा एसएचएम? नो सर। तो फिर सर फिर मतलब सिर्फ नेक्स्ट, लीनियर ऑसिलेटर ही हो सकता है? लीनियर ऑसिलेटर ही होगा। A block whose mass is 680 ग्राम is fastened to a spring. Fastened means बांध दिया गया है उसको, tied to a spring whose spring constant is K is ये 65. The block is pulled 11 centimeter. 11 centimeter उसको खींचा from its equilibrium position x equal to 0, frictionless horizontal surface and released from rest at t equal to 0. फोर्स बताना है, F इक्वल टू कितना हो गया, kx माइनस kx. व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा बताना है, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड, ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। ओमेगा ऐसे निकाला, टाइम पीरियड निकाला, एम्पलीट्यूड निकाला, मैक्सिमम स्पीड का आपको फॉर्मूला पता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला पता है, ये सब आपको फॉर्मूला पता है, आप वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है। ये सब आप पढ़ना, समरी हो गया, ठीक है, ग्लॉसरी हो गया। ये आपको शेयर कर दी पीडीएफ, अभी नहीं करी है? हेलो, फिर आप बोले थे नितेश सर करेंगे तो मैंने नितेश सर को तो उसके बोला लिए। था, अभी आई नहीं आई? नो सर अभी नहीं तो आए। नहीं है सर। शायद नहीं आएंगे सर। एक मिनट में, एक मिनट। मैंने नितेश सर को बोला था क्यों कर देना, पता नहीं शायद वो भूल गए होंगे। आप इसके एग्जाम्पल वगैरह कर लेना, ठीक है, टर्मिनल क्वेश्चन आप ट्राई करना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल सिस्टम्स एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। फिजिकल सिस्टम या एसएचएम कर रहे हैं, फिजिकल सिस्टम्स में क्या आता है, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम तो हमने किया ही है, एंगुलर और लीनियर। एंगुलर मीन्स ओमेगा की तरह से हम देखेंगे, कंपाउंड पेंडुलम, टॉर्शनल पेंडुलम, आरसी सर्किट। ठीक है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट रुकना। You may recall from the previous unit that in spring mass system the potential energy was stored in stretched compressed swing and kinetic energy was stored in the moving mass. आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये इसमें बताया है। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग मास सिस्टम में जो मास कंटेंट है वहां से आ रही है, और पोटेंशियल एनर्जी वहां से आ रही है, और काइनेटिक एनर्जी मूविंग मास से आ रही है। There are many oscillating systems, such as simple pendulum, in which potential energy is associated with gravitational force rather than the elastic force properties of spring. Similarly, in torsional pendulum, the potential energy of system is associated with the elastic property of the twisted wire. तो हमें तीन सिस्टम डिस्कस करने हैं, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड और फिजिकल पेंडुलम, टॉर्शनल पेंडुलम। एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सर a कंपाउंड body is पेंडुलम free to मतलब डबल पेंडुलम। सर कंपाउंड अभी पेंडुलम देखते हैं मतलब। आगे। ओके।
अभी आगे देखते हैं। हेलो, हाँ सर ठीक है। अभी आगे देखेंगे। A body free to rotate about is given axis can execute angular oscillation. आपके पास ये एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम क्या करता है, ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, मतलब एक ही लाइन के अबाउट घूमता रहेगा। लेकिन आपका जो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक है, वो आपने ये एक्सिस एक्सिस कर दिया, ये आपका एक्सिस है, और ये जो है ये गोल गोल घूमेगा, ऐसे 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 घूमेगा, ठीक है। ये ऐसे ऐसे नहीं घूमेगा, बल्कि राउंड, जैसे अर्थ घूमती है ना सन के अबाउट, ऐसे रिवॉल्व करेगा। सर इसमें फिर मेन पोजीशन कौन सा होगा जिसके अबाउट घूम रहा है? हम जो यहाँ पे एक्सिस एक्सिस है। मानेंगे? हाँ। मतलब एक्सिस के अबाउट घूम रहा है इसलिए ऐसे चल रहा सिमिलरली, है। हाँ, हाँ, similarly angular oscillations are considered to be simple harmonic if the restoring torque is proportional to the angular displacement theta and always directed towards the mean or equilibrium angular position। इसमें हम एंगल देख रहे हैं ना, जैसे मान लो ये आप सर्किल है, ठीक है, आप अगर नीचे से देखोगे टॉर्सनल पेंडुलम को तो क्या बनाता हुआ दिखेगा, एक सर्किल बनाता हुआ दिखेगा, ठीक है, ये उसका सेंटर हो गया। यहाँ से मान लीजिए चलना शुरू हुआ, थीटा इजिकल्स टू 0 है, अब वो घूम के कहाँ तक आ गया, फिर दोबारा से यहीं पे आ गया, फिर ये क्या बना दिया इसने, सर्किल बना दिया एक 2 पाई एंगल के बाद। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, टॉर्क इजिकल्स टू आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा। तो टॉ यहाँ से हमारे किसके इक्वल आ गया, के थीटा के इक्वल आ गया। ओके, वेयर के इज कांस्टेंट, द पोजीशन ऑफ सिस्टम व्हेन द रेस्टोरिंग टॉर्क इज 0 इज कॉल्ड इट्स मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो टॉर्क 0 होगा, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी। Analogous to linear SHM, the moment of inertia I takes place of mass and the angular acceleration takes place the linear acceleration. The angular acceleration is given as torque is equals to I alpha होता है, tau is equals to I alpha। तो यहाँ से अल्फा क्या आ गया, tau बाय आई, tau की वैल्यू कितनी है, माइनस के थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आई। इस एक्सेलरेशन द वी कैन राइट, अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा डबल डॉट, थीटा डबल डॉट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, एंड ओमेगा क्या आ गया, रूट के बाय आई। मास को जो है हमने कैसे रिप्लेस कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इंटीग्रेटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट थीटा इज इक्वल्स टू थीटा डॉट थीटा नॉट प्लस साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। यहाँ से हम निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी एनालॉगस टू लीनियर एसएचएफ। द एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस एट एंगल थीटा दिस। ये आपको याद करना है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये टॉपिक पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है सीयूसीईटी में, तो कुछ पता नहीं है कैसे कैसा आएगा क्या आएगा, तो आपको याद रखनी पड़ेंगी चीजें। ओके, ओके। Yes, sir. सिंपल पे सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम में एक, अब अभी तक हम क्या लेट करके चले थे कि जी 0 है, मीन्स जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है, लेकिन अब इसमें क्या हो गया, जी को हमने इंक्लूड किया है। यहाँ पे हमारा जी नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारी जो फोर्स होगी वो कैसे रिप्लेस हो जाएगी, टेंशन से। इस पॉइंट पे देखें तो हमारी टेंशन ये है, टेंशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टी ए क्या है, मैक्सिमम, ये तो पोजीशन है, पोजीशन एट एक्सट्रीम राइट। तो हम यहाँ से निकालेंगे जो इसका मास है, आपका ये बॉब है, ये इससे लटका हुआ है, इसका नीचे वेट कितना लगेगा, mg। ओके, तो ये टी है, तो यहाँ से थीटा एंगल अगर बना रहा है तो ये हो गया टी कॉस थीटा, और ये इधर आ गया टी साइन थीटा। या फिर इन्होंने जैसे किया है, इन्होंने मास को मतलब वेट, अगर इधर mg मानते हैं हम तो नीचे कितना आ गया, mg कॉस थीटा, और इधर कितना आ गया, mg साइन थीटा। ठीक है, बस अब यहाँ से आपको टेंशन, ये तो नॉर्मल सिस्टम है आपका, आपने पहले भी डिफाइन किया हुआ है, फिजिकल्स टू माइनस एम जी साइन थीटा, टेंशन इजिकल्स टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय एल।
The radial force, there is no motion in the radial direction. We mentioned that the angle theta has to be very small. Why do you think so? You have to think. Okay. Simple pendulum as a linear harmonic oscillator, ये सब हम कर चुके हैं पीछे, इसका कोई जरूरत नहीं है। बस जितना आपको फॉर्मूला, ये टाइम पीरियड बस आप याद रखिएगा, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाय जी। ये कहाँ से आया? ऊपर से। इसको देख लेते हैं एक बार। सिंपल पेंडुलम एज एंगुलर हार्मोनिक पेंडुलम। For considering simple harmonic pendulum as angular harmonic pendulum, we need to write the restoring torque. The restoring torque is given by tau is equals to कितना होता है? RF sin theta. तो torque for theta is equals to pi by 2 maximum L F. F कितना है? mgl। ये क्या कर दिया नहीं? F कितना है? mg sin theta for small angle sin theta is equals to थीटा। तो यहाँ से फोर्स कितना हो गया? mg थीटा, mgl थीटा। थीटा को तो हमें टॉर्शन कॉस और टी और हमें थीटा में रिप्रेजेंटेशन चाहिए टाउ और थीटा में। तो हमारा ये क्या हो गया? mgl जो बचा ये हमारा k हो गया। यहाँ से k आ गया, I इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर ओमेगा इज k बाई आई। k की वैल्यू कितनी है? mgl और ये I क्या सर ये है? ml माइनस स्क्वायर। साइन हाँ, माइनस साइन आ रहा माइनस है। साइन ये कि आपका जो डायरेक्शन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ है। ओके। ओमेगा इज जी बाई एल, रूट जी बाई एल आ गया। बस यहाँ से टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रू ओमेगा। ओमेगा कितना है? जी बाई एल, तो जी बाई एल आ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है, आप इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। सॉल्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ से जी की वैल्यू निकाल दिया और कुछ नहीं निकालना। 38 सेकेंड, 38 सेकेंड लग रहा है 10 ऑसिलेशन के लिए। 10 ऑसिलेशन के लिए कितना लग रहा है? 38 सेकेंड। तो 1 ऑसिलेशन के लिए क्या लगेगा? 3.8 सेकेंड। तो यहाँ से टी कितना आ गया? 2 पाई रूट जी बाय एल। यहाँ से आपको क्या निकालना है? जी की वैल्यू निकालनी है। 3.8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई रूट एल बाई जी होता है क्या? ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आती है? एल बाई जी, एल बाय जी। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे। जी का फॉर्मूला ये रहा, यहाँ से आप रख के वैल्यू निकाल लोगे। 4 पाई 0.6 डिवाइड बाय 3.8 स्क्वायर। नेक्स्ट है कंपाउंड पेंडुलम। Any rigid body suspended from a fixed support constitutes a compound pendulum, which is also known as physical pendulum. As a matter of fact, all real pendulums are compound in nature. आपने कोई भी किसने क्वेश्चन पूछा था? अनुश्री। आपने कोई भी रियल ऑब्जेक्ट लिया, उसको टांग दिया, वो हो गया आपका कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, मतलब जैसे आप मान लो एक एक स्टोन लिया आपने, बड़ा सा स्टोन, उसमें छेद किया और उसको लटका दिया डायरेक्ट बिना किसी स्ट्रिंग के। उसी में छेद किया और उसी को लटका दिया, जैसे डिस्क है आपकी। ठीक है अनुश्री, डिस्क है, यस सर। डिस्क है, डिस्क में आपने एक छेद दिया और उसको एक कील पे टांग दिया, फिर उसको घुमा दिया, तो वो आपका कंपाउंड पेंडुलम बन गया। ठीक है, ये इसकी कंडीशन होगी। वहां से ये हमारा रेफरेंस पॉइंट या मीन पॉइंट है। यहाँ से एक डी डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से वेट एक्ट कर रहा है एम जी। फिर हमने वही डायरेक्ट कंडीशंस लगाई और हमने निकाला टॉ इज इक्वल्स टू माइनस एम जी थीटा माइनस के थीटा। के इज इक्वल्स टू कितना हो गया? एम जी डी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? डी। तो ये डिस्टेंस डी आ गया, के इज इक्वल्स टू एम जी डी। हमारा टाइम पीरियड कितना आ गया? टी इक्वल टू 2 पाई रूट आई बाई एम जी डी। इसके आने के चांसेस कम है। इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए? सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। A uniform rod of length 1 centimeter is suspended through end and is set to oscillation with small amplitude under gravity. Calculate time period. यूनिफॉर्म रॉड है, रॉड के लिए इन रॉड को कहाँ से किया है? सस्पेंडेड थ्रू एंड। आपकी ये रॉड है, इसको एंड से सस्पेंड किया है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया?
ml²/12। L कितना है 1 मीटर। अच्छा अबाउट सेंटर ml²/12 होता है। ml²/12 यहाँ पे सेंटर के अबाउट हो गया, और ml²/12 प्लस ml²/4 ऐड कर देंगे तो ml²/3 हो जाएगा अबाउट एंड। मास नहीं दिया है तो मास को हम ऐसे ही वो कर देंगे, छोड़ देंगे, अच्छा वो तो कट जाएगा वैसे भी। बस तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर दोगे, टाइम इज इक्वल्स टू 2π√I/mg/d। डी कितना है L/2। D is equals to L/2 because the rod is uniform and therefore the center of mass lies lies in the center of rod। G यहाँ पे D क्या है, distance of point of suspension from center of mass। Next है a hollow metal sphere is filled with water and a hole is made in its bottom. It is hanging by a long thread and is made to oscillate. Explain qualitatively how the period of oscillation change if water is allowed to flow through the जब तक पानी खत्म नहीं हो जाता कैसे होगा। Initially the center of mass will be at the center of sphere. However, as the water drains out, the center of mass of oscillating system will first move down, then will come up, due to which effective length d between the point of suspension and center of mass first increase reaches maximum and then decrease to its initial value। v टाइम पीरियड हमारा रूट एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। thus the time period also increases first reach a maximum value and then decrease until it become equal to the initial value। जब इसमें पानी पूरा भरा हुआ तो एक यहाँ पे पानी पूरा भरा हुआ है इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या हुआ, खाली हो गया। पहले मास कितना है m, बाद में भी मास कितना, बाद में मास कितना वही, लेकिन स्मॉल m और m के इररेस्पेक्टिव है। तो हमारे टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल l पे डिपेंड कर रहा है। t इज इक्वल्स टू कितना होता है √I/mg/d, ठीक है ना। I में कितना आ रहा है, लेंथ आ रहा है, और d डिस्टेंस, तो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है कि आपका टाइम पीरियड क्या होगा। यहाँ से आप सोच सकते हो कि जब पहले पानी भरा हुआ था, आप इमेजिन करो एक स्फीयर है उसके अंदर पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो गया, उसके सेंटर पे हो गया। लेकिन जब पानी धीरे धीरे कम होने लगा, जब पानी धीरे धीरे कम होगा तो वो नीचे की साइड होगा, तो सेंटर ऑफ मास नीचे की साइड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जब पानी खत्म हो गया तो आपके पास क्या बच गया, एक हॉलो स्फीयर बच गया। हॉलो स्फीयर में दोबारा से उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे पहुंच गया, उसके मिड पॉइंट पे पहुंच गया। ओके, फिर इसके बाद टॉर्शनल पेंडुलम। हाँ कोई क्वेश्चन है किसी का। नो सर। सर ये हाँ वापस जो ये एल आया ये क्या है, और ये वापस एल पे कैसे डिपेंड टी कर रहा इज है, तो मास है। टी इजिकल्स टू क्या है, √2π√L/g होता है ना। मास तो है नहीं इसमें कहीं, एल पे चेंज कर रहा है बस। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। सर आपने तो कोई और फॉर्मूला लिखा था अभी। अरे वो सेम ही तो है, मैं कंपाउंड सिस्टम ट्रीट कर रहा हूँ ना। कंपाउंड पेंडुलम के लिए क्या होता है, 2I/mg/d। 2π, आई को क्या लिख सकते हो, ml²/mg/l। अगर d इक्वल्स टू एल मान ले, मतलब लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास सेम मान ले, तो m से l कट गया, l से l कट गया, तो t कितना आ गया, √L के प्रोपोर्शनल आ गया ना। ठीक है। यस सर। इन ए टॉर्शनल पेंडुलम एन एक्सटेंडेड बॉडी सब्सटेंडेड बाय अ लाइट थ्रेड। इसमें थ्रेड आ जाता है, पहले स्प्रिंग थी अब इसमें आ गया थ्रेड। To initiate angular oscillation of the hanging extended object, the body is rotated by angle theta about the wire and is then released। ये है आपका बॉडी है, इसको हमने वायर को, जैसे आप मान लो वो देखा है आपने, क्या कहना चाहिए, हम्म, अरे एक वो पहले खिलौना नहीं आता था जिसपे आप वायर ऐसे बंधा रहता था, एक वो है वायर, इसको आप खींचते थे तो ऊपर एक वो लगा रहता था फैन जैसा,
वो उड़ जाता था। वो देखा है आप लोगों ने, ऐसे करके घुमाते तो वो उड़ जाता था ऊपर से, फिर वो वही है सिस्टम यहाँ पे। The wire remains vertical throughout the motion, but a twist is produced in the wire and the body a execute angular oscillation. The lower end of wire is rotated through angle theta, which the body, but the upper end of wire attached to fixed point remain fixed. The twisted wire exerts a restoring torque on the body to bring it back to the original position, which is equilibrium or mean position. Theta is equals to 0. This torque has magnitude proportional to angle of twist, which is equal to the angle rotated by a body. The proportionality constant, torsional constant k of wire is given by tau is equals to minus k theta. सब कुछ सेम है, सारे फॉर्मूले सेम है। ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई आई, टी इज इक्वल्स टू 2 बाई ओमेगा आई बाई के। सब कुछ सेम है, वैसे ही चलता चला जाएगा। डिस्क आ गई तो डिस्क का हमें सेंटर ऑफ मास याद होना सर चाहिए। एक बार थ्योरी समझा दो। थ्योरी क्या है कि आपके पास ये है, ब्लैंक पेज, एक मिनट, ठीक है, ये आपके पास फिक्स पॉइंट है, फिक्स। यहाँ से आपने एक वायर लटकाया, वायर को ट्विस्ट करते गए, वायर को ट्विस्ट किया, ट्विस्ट किया, ट्विस्ट किया, ट्विस्ट किया, ट्विस्ट किया, ट्विस्ट किया। नीचे एक डिस्क लगी हुई है, डिस्क लगी हुई है या कुछ भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये वायर है, यहाँ पे आपका वो है। इस वायर को आपने ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट करोगे, अगर आप कोई वायर लो, ऊपर से हैंग कर दो और नीचे से ट्विस्ट करते जाओ, तो वो टाइट होता जाएगा, उसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स आती जाएगी। फिर अगर उसको छोड़ोगे तो एकदम से घूमता है। यस सर। हेलो, ठीक है ना, वही यहाँ पे है, वही टॉर्सनल पेंडुलम है। आप उसको ट्विस्ट करते गए, ट्विस्ट करते गए, ट्विस्ट करते गए, आप उसमें एनर्जी स्टोर करते गए। जैसे ही आपने रिलीज किया, वो एनर्जी अनवाइंड हो गया। अनवाइंड होना सुना है ना, अनवाइंड होना मतलब खुल गया। जितना आपने ट्विस्ट किया था वो अनट्विस्ट हो गया, अनवाइंड हो गया, तो उसकी वजह से जो ऑसिलेशन हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, टॉर्सनल ऑसिलेशन कह रहे हैं। ये इसका क्वेश्चन करके दिखाया है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का सेंटर के अबाउट कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू। यहाँ से ये आ गया, आई आ गया, फिर आपने टाइम पीरियड आई बाई के रखा, यहाँ से के की वैल्यू आ गई, बस आपका आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट दिया है, रॉड के लिए दिया है। रॉड के लिए आपने क्या निकाला, पहले तो ऑसिलेशन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन, ये क्या आ गया, एम एल स्क्वायर बाय प्लस एम एल स्क्वायर, 13/12 एम एल स्क्वायर। आई आ गया, टाइम पीरियड रूट के बाई आई आ गया। बस ऐसे करना है, इजी इजी क्वेश्चन है, बस आपको करने। एलसी सर्किट, एलसी सर्किट में भी ऐसे ही होता है, बी एलसी सर्किट शाम को करेंगे, ओके। फिर इसके बाद एलसी सर्किट के बाद आपका वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, डैम्प्ड और वो सुपरपोजिशन और करना है। शाम को आपका आधा सिलेबस हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद आपका बचेगा डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड बनेगा, बचेगा, ओके। तो शाम को ठीक 6 है, बजे 6 बजे, हाँ, ओके, ओके सर। ठीक है, चलो शाम को करते हैं। कोई किसी का डाउट? पीडीएफ